بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے پیارے فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل نوول سرکل۔ تو گائز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ہم صرف آپ کے لیے اپنی اتنی بیزی روٹین میں سے وقت نکال کر صرف آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو تیار کرتے ہیں جو کہ بہت محنت سے بنائی جاتی ہے۔ تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر میں سبسکرائب لکھا ہوتا ہے جب آپ ویڈیو اوپن کرتے ہیں، تو پلیز میرے چینل کی یا کسی بھی چینل کی یا کسی بھی قسم کی آپ ویڈیو اوپن کرتے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کر دیجیا کریں۔ اس سے کسی بھی قسم کے پیسے وغیرہ خرچ نہیں ہوتے، نہ کوئی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، صرف سبسکرائب اس پر ریڈ کلر کے سبسکرائب لکھا ہوتا ہے اس پہ کلک کرنا ہے، بس ایک فنگر سے آپ نے کلک کر دینا ہے، بس پھر آپ نے اپنی ویڈیو دیکھ لینی ہے، ویڈیو سٹاپ بھی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو برائے مہربانی پلیز میری ویڈیو کو میرے چینل کو اور میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیجیا کریں۔ تو چلیں ناول کا پارٹ 12 سٹارٹ کرتے ہیں۔ سر، وہ لڑکا آج اپنی بل سے باہر نکلا ہے۔ محراب لودھی اور اس کے بیٹے کے بارے سوچ رہا تھا۔ اس کو آفیسر نے بتایا تھا کہ شیبی بھی پاکستان آ چکا ہے۔ سالم کی طرف دیکھ کر آئی برو اچکائی، وہ سر ہلا کے آگے بولنے کا اشارہ کیا۔ سر، اس کے گھر کا جائزہ لیا ہے، وہاں ایک اور گھر کا خفیہ راستہ ہے۔ وہ گھر باہر والی گلی میں لگتا ہے۔ وہ دانی نامی لڑکا زیادہ اسی طرف سے آتا جاتا ہے۔ اور لوگوں کو دکھانے کے لیے دن میں ایک بار اس گھر سے باہر نکلتا ہے۔ اور وہ ملا کس سے ہے؟ محراب نے کہا، سر وہ اسی ہاسپٹل گیا تھا، پر سر وہ بنا کسی سے ملے جلدی سے وہاں سے باہر نکل گیا۔ ہمارے پہنچنے تک وہ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ اس نے تمہیں دیکھ لیا تھا، اسے پتا تھا کہ تم اس پر نظر رکھے ہوئے ہو۔ محراب سرد آواز میں سالم کو دیکھ کر بولا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ اور آواز سے سالم کو ڈر سا محسوس ہوا۔ پر ہم تو چھپ کر نظر رکھ رہے تھے۔ سالم نظریں جھکائے بولا۔ اس کے بتانے سے پہلے ہی محراب وہ لیپ ٹاپ دیکھ چکا تھا جو سالم کو اس گھر سے ملا۔ وہاں پاس ورڈ لگانے پر بھی نہ کھلا تو بنا وقت ضائع کیے وہ لوگ اس لیپ ٹاپ کو فلیٹ ہی لے آئے تھے۔ محراب نے ہیکنگ سے لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ کھول لیا تھا اور اس میں مختلف فولڈر میں سے ایک کیمرہ ویڈیو کا تھا۔ محراب نے وہ اوپن کیا تھا تو حیران رہ گیا۔ اس لڑکے نے گلی میں کیمرے لگا رکھے تھے اور ان کو دیکھ لیا تھا، اسی لیے گھر سے باہر نہ نکلا۔ اسے ہاسپٹل سے کوئی ایمرجنسی کال آئی، اس لیے وہ بنا سوچے جلدی میں گیا تھا اور اسی کا فائدہ اٹھا کر سائم لوگوں نے اس کا گھر چھان مارا اور وہ لیپ ٹاپ بھی اٹھا لیا تھا۔ ہاسپٹل سے وہ اسی لیے بھاگا کہ وہ جان گیا تھا کوئی اس کے تعاقب میں ہے، اور یہ بھی کہ اب تک اس کے گھر کا آپریشن بھی ہو چکا ہوگا۔ تم نے اچھا کیا کہ یہ لیپ ٹاپ لے آئے، اس میں سے بہت سی انفارمیشن ملے گی۔ پر وہ لڑکا ہاتھ سے نکل گیا۔ اب کیا کرنا ہے سر؟ سائم نے کہا، اس ہاسپٹل کے باہر رہو، ہر آنے جانے والے پر نظر رکھو، کچھ تو ہے اس ہاسپٹل میں، وہ لڑکا ضرور آئے گا وہاں، پر دھیان رہے اس بار وہ حلیہ تبدیل کر کے آئے گا تو اپنی آنکھیں کھلی رکھنا۔ جی سر۔ لودھی بھی واپس آ چکا ہے، اپنے آدمی بھیجو، ہر حال میں اس کے ساتھی کا پتہ لگاؤ۔ محراب سائم سے کہتا لیپ ٹاپ لیے حویلی کے لیے نکلا۔ شمشاد دادا اور پاشا سنگاپور میں موجود تھے۔ بتا کون تھے وہ؟ شمشاد دادا آنکھ کے اوپر لگی پٹی پر ہاتھ رکھ کر اپنے آدمی پر دھاڑا۔ دادا وہ ابھی پتہ نہیں چلا، اگر پاکستان سے ہوتے تو آپ
अब तक लोधी का काम ख़त्म कर चुके होते। पता लगाओ खबीज़ों, पता लगाओ, मुफ्त में रोटियां तोड़ने के लिए नहीं रखा। ये ऐशो इशरत जिस काम के लिए मिली है वो करो। 2 दिन हो गए हैं और तुम पता नहीं लगा पाए, बोल कमीने शमशाद दादा को गिरबान से पकड़कर बोला और गन उसके माथे पर रख दी। दादा वो डर से उस आदमी से बोला नहीं जा रहा था। हम अपने मकसद के बहुत करीब हैं, इससे पहले कि सब बर्बाद हो जाए हमें उनको तबाह करना होगा। वो इस आदमी के बाजू पर गोली मारते बोला, अब तू पता लगाएगा, अगर अगली बार ऐसे मुंह उठा के आया तो ये सारी गोलियां तेरी खोपड़ी में ठूंस दूंगा। वो पता नहीं लगा पाए कि इन पर हमला करने वाले कौन थे, क्योंकि हुमायूं की टीम ने अपना हुलिया बदला हुआ था और शमशाद दादा पर भी नहीं कह सकता था कि एजेंसी में पहले ही उसकी बहुत बेइज्जती हुई थी। इसलिए वो जल्द से जल्द पता लगाकर रिपोर्ट देना चाहता था। सदाम डेरे पर बैठा था और उसकी पार्टी के लोग भी बराजमान थे। चौधरी सदाम, क्या सोचा है आपने? अब आगे क्या करना है? वही जो मेरा दिल चाहेगा। वोट देते वक्त बड़ा पैसा बहा लिया, अब एक कौड़ी नहीं। सदाम कोल्ड ड्रिंक्स का गिलास लबों से लगाते बोला, पर सदाम ये गलत होगा, आपको इन गरीबों की मांग पूरी करना होगी। जिसका लालच दिया था, एक आदमी बोला, ऐसी की तैसी। कौन सी मांगे हैं उनकी? सदाम मगरूर होकर बोला। वो आदमी सरनफी में हिलाए चला गया, जैसे उसका कुछ नहीं हो सकता। जो उसके चमचे थे वो उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। वो उनसे बात कर रहा था जब अनजान नंबर से कॉल आई। हेलो, सदाम में लोधी घबराई हुई सी अशफाक लोधी की आवाज़ गूंजी। क्या हुआ है और ये कौन सा नंबर है? चौधरी सदाम ने कहा, मेरी बात सुन, आज से इसी नंबर पर बात होगी। इस पर गलती से भी कॉल मत करना। ये हुआ क्या है? फिर लोधी ने दुबई हुआ सारा वाकया उसके गोशवार किया। ये परेशानी की बात है लोधी, कहीं हमारा राज भी ना खुल जाए, इसीलिए कह रहा हूँ, हमें संभल कर रहना होगा। लोधी ने कहा, तुझे वहाँ किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, मैं वहाँ से फ़ौरन फ़रार हो गया। पर बॉस हम पर बहुत बरहम हो रहा है, इसलिए हर हाल में हमला करने वाले चाहिए और हमें अपना काम तेज़ी से बढ़ाने का कहा है। ठीक है, पर मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, ना तेरा साथ दे सकता जब तक मेहराब इधर है। उसकी नज़र अपने बाप पर ही टिकी। पता नहीं कैसी औलाद है, बाप का साथ देने की बजाय उसकी खोज लगा रहे हैं। हूँ ठीक है। कुछ देर बाद दोनों ने कॉल बंद की और सद्दाम किसी गहरी सोच में गुम हो गया। सब हाल में बैठे मेहराब की शादी का डिस्कस कर रहे थे। चौधरी साहब, असफंद, बिलावल और ज़ुबैर एक तरफ बैठे बातों में मशगूल थे, दूसरी तरफ चौधराइन सोनम को पास बिठाए उसके लिए कपड़े और जेवर देख रही थी। सुंभल भी पास बैठी सोनम की हेल्प कर रही थी। रिजवाना बेगम असद के लिए सूप बना रही थी और तालिया भी उनके साथ। उसे खाना बनाने का बहुत शौक था। वो रिजवाना बेगम से सब डिशेस सीख रही थी। अभी वो उसे सूप बनाना सिखा रही थी। तालिया जी, आंटी बेटा ये सूप दे आओ असद को। मुलाजमा के हाथ से उसने नहीं लेना, नखरे दिखाएगा। पता नहीं आजकल क्यों इतना चिड़चिड़ा सा हो गया। रिजवाना बेगम असद की फिक्र में हल्कान बोली। मैं दे आऊं? तालिया परेशानी से बोली। जी क्यों बेटा, कोई मसला है? नहीं, मेरा मतलब था अगर मुझसे भी ना लिया तो। अरे क्यों नहीं लेगा, तुम जाओ दे आओ, मैं ज़रा माँ साहब की बात सुन लूँ, वो कहती किचन से चली गई। तालिया मुंह में उंगली दबाए बाउल को देख रही थी, फिर उसको उठाए असद के कमरे की जानिब बढ़ी। असद पे बेड पर लेटा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ। तालिया सूप लिए अंदर आई। आंटी ने ये दिया है, रख दो, बेनियाजी से कहा गया। वो उसको रखकर जाने के लिए मुड़ी। बात सुनो ज़रा, असद ने पीछे से पुकारा। जी, तालिया गर्दन मोड़कर बोली। ये सूप तुम क्यों लेकर आई हो? वो आंटी ने कहा था। तो सोनम आपी सुंबल किधर थी? वो शादी के लिए कपड़े देख रही हैं। अच्छा, अब मेरे कमरे में मत आना। उसकी बात पर तालिया को गुस्सा आया। एक तो उसके लिए सूप लेकर आई, पर ऊपर से ऐसे मना कर रहा है जैसे वो जानबूझकर आई। वो उसके पिछले रवैये से तालिया अच्छा खासा खुद को समझा चुकी थी और अपने दिल में पनपते मोहब्बत को
वहीं रोक चुकी थी। मुझे भी कोई शौक नहीं है आने का। वो तो आंटी ने भेजा तो मैं ले आई। ठीक है, कभी मत आना। असद को न जाने तालिया का ऐसे बात करना क्यों बुरा लगा, इसलिए वो मज़ीद बरहम हुआ। आना भी नहीं चाहती, तालिया ने कहा। हाँ, वो आपने रोका है इसलिए तो अब जाने का भी मैं ही कह रहा हूँ। असद ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जा रही हूँ और ये पहले वापस दो मुझे। तालिया सूप की तरफ लगी। इससे पहले असद ने उठा लिया। क्यों? ये मैं लाई हूँ, दे मुझे वापस। बनाया तो मेरी माँ ने है। लेकर तो मैं आई हूँ और ऊपर से बातें भी सुनी आपकी। रखें वापस ट्रे में। रुको ज़रा, 1 मिनट। 1 मिनट, असद ने कहते साथ ही बाउल मुंह से लगाया और पूरा सूप पीकर खाली बाउल ट्रे में रख दिया। तालिया मुंह खुले देख रही थी। चलो उठाओ उसे और अब ले जाओ। मैं नौकर नहीं हूँ आपकी, तालिया तंग कर बोली। अच्छा, थोड़ी देर पहले तो नौकरों वाला काम कर रही थी। वो टेक लगाकर बैठता बोला। वो कोई नौकरों वाला काम नहीं था। तो ये कोई नौकरों वाला है? असद दो बोला। उसे तालिया को तंग करने में मज़ा आ रहा था। मैं जा रही हूँ, ये बर्तन अब खुद रखना आप। तालिया नाक चढ़ाती बोलती दरवाजे से निकल गई। असद के चेहरे पर भूली भटकी मुस्कुराहट भी करीबी। पागल लड़की, वो बड़बड़ा या हल्का सा। मेहराब हवेली आए तो सब लाउंज में बैठे थे। वो सलाम करता सबसे मिला और दादा के साथ बैठ गया। मेहराब पुतन, खाना खाना है? नहीं माँ, आप सबके साथ खाऊंगा। दादा जान, मेहराब ने पुकारा तो सब उसकी तरफ मतवज्जा हुए। मुझे आपसे कुछ कहना है। हूँ, बोलो जवान। असफंद साहब ने कहा, मैं आज ही सोनम से निकाह करना चाहता हूँ। उसकी बात पर सब हैरान हुए और सोनम पास बैठी सुंबल का हाथ थाम लिया। ये क्या बेटा, इतनी जल्दी क्यों? 4 दिन बाद तो वैसे भी आपकी शादी है, चौधरी इफ्तिखार ने कहा। मैं चाहता हूँ पहले निकाह हो जाए, बाद में भी तो होना है, अब क्यों नहीं? वो तो ठीक है बेटा, पर असफन साहब ने कहा। खवातीन सारी खामोशी से सुन रही थी। पर कुछ नहीं चचा जान, अब भी होना है और बाद में भी तो अच्छा नहीं कह के पहले हो निकाह हो जाए, फिर शादी की रस्में हो जाएंगी। ठीक है शेर पुत्र, जैसा तू चाहेगा वैसा ही होगा। चौधरी इफ्तिखार उसके कंधे पर हाथ रखते बोले और फिर उठकर गले लगाया। सब खुश होकर मेहराब से मिले और सोनम के सर पर प्यार दिया। चलो अब जल्दी से निकाह की तैयारी करो, चौधराइन मुलाजमा से बोली। एकदम से हलचल मच गई। सुंबल, तालिया बहन को ले जाओ कमरे में और तैयार करो अच्छा सा। रिजवाना बेगम उसको गले लगाती बोली। मेहराब आरफ्तगी निगाहों से सोनम को देख रहा था, जो लाल सुर्ख सी हल्का हल्का कांप रही थी। जुबैर, बिलावल, निकाह का इंतजाम करो। जी कहते ही दोनों जल्दी से बाहर निकले। सुंबल और तालिया उसे कमरे में ले आई। हाय आप ही, आप ब्लश करती कितनी प्यारी लगती हैं, तालिया ने उसके गाल खींचकर कहा। मेहराब भाई से रहा नहीं जा रहा, 4 दिन, इसलिए आप ही आज ही निकाह करवा रहे हैं। सुंबल सोनम को कंधा मारते बोली। वो मुस्कुराती सर झुका गई। चलें आप भी, बाकी का ब्लश भाई के सामने करना। अभी ये पकड़ें और तैयार हो जाएं जल्दी से। सुंबल उसको वाइट शरारा पकड़ाती बोली। वो उसको घूरती वाशरूम चली गई। चलो तब तक हम तैयार हो जाएं। तालिया अपने कमरे में तैयार होने के लिए भागी और सुंबल ने सोनम के कमरे में तैयार होना था। जब वो इनकार करके असफन साहब के कमरे से निकला, तब ज़ुबैर सब सुन चुका था। वो उससे कहना चाहता था कि उसे गलतफ़हमी हुई है, पर मेहराब गुस्से में हवेली से चला गया। रात गई जब वापस आया तो ज़ुबैर और सोनम को देखकर उसका दिमाग घूम गया। ज़ुबैर परेशान रहा कि इसकी वजह से दोनों में लड़ाई हो रही है। वो मेहराब के दुबई जाने से पहले उसको सारी बात बताकर गलतफ़हमी दूर करना चाहता था। मेहराब उसके सामने शर्मिंदा सा हुआ था। ज़ुबैर ने आगे बढ़कर उसके गले लगाए और मेहराब ने उसका शुक्रिया अदा किया। अब जब सारी गलतफ़हमी दूर हो चुकी थी, तो वो फ़ौरन से सुंबल को अपनी दस्तरस में लेना चाहता था। वो 1 मिनट भी उसके बगैर नहीं रहना चाहता था कि साल खुद को और उसे तकलीफ़ दी, पर अब जल्दी से सोनम के सारे जुमला हकूक़ अपने नाम लिखवाना चाहता था। कुछ देर बाद सब तैयार
ड्राइंग रूम में बैठे थे। मेहराब ने वाइट शलवार कमीज पर हाफ स्लीव ब्राउन कलर की वेस्ट कोट पहनी और इंतहा का प्यारा लग रहा था। उसकी निगाहें बार बार दरवाजे पर जा रही थी। सब्र कर जाओ भाई, अभी आ जाएगी। जुबैर उसके देखने पर हल्का सा उसकी तरफ झुक कर बोला। मेहराब मुस्कुराया और फिर उसी तरफ देखा तो देखता रह गया। सोनम वाइट शरारे पे हल्का सा मेकअप किए, घुंघराले बालों को सामने से चुटिया किए, उनमें छोटे छोटे बीड्स लगाए, लाइट सा मेकअप किए, ब्लड रेड लिपस्टिक लगाए, आंखों पर मस्कारा मस्कारा और आईलाइनर लगाए, रेड जालीदार दुपट्टे से घूंघट डाले बहुत खूबसूरत लग रही थी। चौधराइन और रिजवाना बेगम ने दोनों की नज़र उतारी, जो एक साथ चांद और सूरज की जोड़ी लग रहे थे। सुंबल और तालिया ने ग्रे और पीच कलर की फ्रॉक पहनी थी, जिन पर एम्ब्रॉयडरी और नक्शी का काम हुआ था। दोनों बाल खोले, दुपट्टा सलीके से सेट की, बहुत प्यारी लग रही थी। असद को मेहराब और बिलावल नीचे लाए थे और ब्लैक शलवार कमीज पहने सोफे पर कुशन से टेक लगाए बैठा था। बिलावल ने ब्राउन शलवार कमीज और जुबैर ने लाइट नेवी ब्लू रंग की शलवार कमीज पहनी थी। वो तीनों बहुत प्यारे लग रहे थे। हवेली के सब मकीन ही खूबसूरत और प्यारे थे। असद ने तालिया को देखा तो वो उसके देखने पर मुंह फेर गई। कुछ देर बाद निकाह शुरू हुआ। सोनम चौधरी वल चौधरी असफंद इफ्तिखार, आपका निकाह चौधरी मेहराब वल चौधरी सदाम इफ्तिखार से सिक्का राइजुल वक्त हक महर 5 लाख रुपए किया जाता है कि आपको ये निकाह कबूल है। सोनम ने असफंद और बिलावल की तरफ देखा। असफंद साहब ने उसके सर पर हाथ रखा, फिर बिलावल ने हाथ रखा। माँ की याद में एक आंसू टूटकर उसकी गोद में गिरा। कबूल है, सोनम ने धीमी आवाज में कहा। क्या आपको कबूल है? कबूल है कि आपको कबूल है? कबूल है। फिर मौलवी साहब ने मेहराब से पूछा। उसने खुशी खुशी 3 बार कबूल है कहा। मुबारक हो बहुत बहुत। मौलवी ने मेहराब को गले लगाया और सोनम के सर पर हाथ रखा। मेहराब से सबसे खुशी से गले मिला। सब ने उनको ढेरों दुआएं दी। बिलावल ने सोनम को अपने सीने में भींचा और उसके सर पर लब रखे। असफन ने बिलावल और सोनम दोनों को साथ गले लगाया। हवेली में खुशियां ही खुशियां थी। रिजवाना बेगम ने सोनम को बहुत प्यार किया, उसे माँ की कमी महसूस ना होने दी। हवेली के सब लोग एक दूसरे के गले मिले। चौधरी इफ्तिखार अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद सोनम इन दोनों के साथ कमरे में आ गई। वो बैठी सोनम को छेड़ रही थी, जो कभी उनको घूरती तो कभी मुस्कुराती। मेहराब का दिल सोनम से मिलने का कर रहा था। कुछ देर बाद वो सबसे बातें करके एक्सक्यूज करता वहां से अपने कमरे में जाने का कहकर उठा। वो सोनम के कमरे में आया। सुंबल और तालिया एक दूसरे की तरफ देखकर मानीखेजी से मुस्कुराई। बेटा, थोड़ी देर के लिए आपकी भाभी आपसे चुरा रहा हूँ। मेहराब मुस्कुराहट दबाते बोला। सोनम आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी। जी जी भाई, ले जाएं। मेहराब ने सोनम का हाथ पकड़ा, जो उसको देखकर ठंडी पड़ चुकी थी। हमारी आपी को जल्दी छोड़ जाइएगा भाई। वो सोनम का हाथ पकड़े अपने कमरे में लाया। उसका दिल धक धक कर रहा था। जैसे निकाह किया ऐसे ही रुखसती ना करवा ले। वो उससे नाराज भी थी और गुस्सा भी, कि जैसे इसने इनकार किया और फिर हक जताकर निकाह भी कर लिया। मेहराब ने उसको कमरे के वस्त में खड़ा किया। सोनम अपनी खूबसूरती और रनाइयों के साथ उसके सामने खड़ी थी। यहाँ क्यों लाए हैं मुझे? अपनी बीवी को फुर्सत से देखना चाहता हूँ, मेहराब गंभीर लहजे में बोला। पर मैं आपको नहीं देखना चाहती। सोनम रुख मोड़ कर बोली। मत देखो। मेहराब ने उसको बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। छोड़े, मुझे जाना है। नहीं छोड़ सकता। मेहराब उसके करीब हुआ। सोनम को गुस्सा आ रहा था। उसने अभी तक अपनी गलत फहमी की माफ़ी नहीं मांगी थी। उसके यूं करीब होने पर सोनम पसीने में नहा गई। डार्लिंग, मुझे पता है आपको मुझसे बहुत शिकवे हैं। वो सारी शादी की रात दूर कर दूंगा। मेहराब उसका निचला होंठ अंगूठे से सहलाते बोला। इसकी हरकत पर सोनम की पलकें लर्ज गई। मुझे तालिया ने बुलाया है। कहीं नहीं जाना, खबरदार। जो अभी जाने का सोचा भी तो इसी वक्त रुखसती करवा लेनी है मैंने। अभी खुद को महसूस कर लेने दो। बड़ा तड़पाया है तुमने मुझे।
محراب اس کو گود میں اٹھائے صوفے پر بیٹھا اور سونم کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس کی لو دیتی نظریں اور اوپر سے اس کی گود میں قید پڑی سونم لال ٹماٹر ہو گئی۔ سونم نے اٹھنے کی کوشش کی تو محراب نے گرفت اور مضبوط کی اور اس کا سرخ جالی دار دوپٹہ ہٹا کر اپنے تشنا لب اس کی گردن پر رکھ دیے۔ سونم جی جان سے کانپی۔ محراب کے ہونٹ اس کی گردن پر جا بجا حرکت کر رہے تھے اور سونم کی سانسیں پھول رہی تھی۔ کچھ دیر بعد محراب نے اس کی گردن سے چہرہ نکالے اسے دیکھا جو سرخ ہوئی سانسیں ہموار کر رہی تھی۔ محراب اس کے کامتے لبوں کو دیکھ کر جھکا اور پوری شدت ان پر لٹانے لگا۔ سونم کی آنکھیں باہر آنے کو تھی۔ اس نے بازوؤں سے پکڑ کر محراب کو جھٹکا دیا جو اس کے نشے میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس کے جھٹکا دینے پر بھی کوئی اثر نہ ہوا اور اس پر ایسے ہی جھکا اس کی سانسوں کو پی رہا تھا۔ جب سونم بے ہوش ہونے کے در پر تھی تب محراب نے اسے آزادی بخشی۔ وہ کامتی ٹانگوں اور پھولی سانسوں سے اس کی گود سے فوراً اٹھی اور دور جا کر گہرے سانس لینے لگی۔ ڈارلنگ کیا ہوا؟ ابھی تو آپ کی تعریف کرنی ہے اور نکاح کی مبارک بھی دینی ہے، محراب اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے بولا۔ سونم جو پہلے سرخ ہوئی کھڑی تھی اس کی بات پر روانتی ہوئی۔ اس کو اپنی طرف آتا دیکھ وہ جلدی سے دوپٹہ درست کرتی شرارہ دونوں ہاتھوں میں اٹھائے باہر کو بھاگی۔ دوپٹہ سرک کر اس کے کندھے پر آ گیا۔ محراب اس کے یوں بھاگنے پر کہنکا لگا اٹھا۔ ارے نکاح کی مبارک باد تو میں نے دی ہی نہیں، وہ تو لیتی جاؤ۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا بیڈ پر لیٹا اور اس کے سرخ چہرے کو دل میں بسائے آنکھیں موند کیا۔ رات کا کھانا کھا کر ہمایوں منت کو نظروں سے روم میں آنے کا کہہ کر اوپر چلا گیا۔ منت پہلے ہی رفن بیگم سے بات کر چکی تھی، اس لیے حورب کو اٹھائے ان کے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل ڈر رہا تھا۔ حورب دونوں کے درمیان مزے سے سو گئی۔ رفت بیگم اور منت بھی ہلکی پھلکی باتیں کرتی نیند میں چلی گئی۔ ہمایوں لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ کرتے کرتے دیر ہو گئی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا۔ منت کا خیال آنے پر وہ سرخ آنکھیں لیے اٹھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا آگے سے خالی بیڈ دیکھ کر اسے تشویش ہوئی، پھر خیال آتے ہی تنے نقش ڈھیلے پڑے۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آیا۔ جانم یہ ٹھیک نہیں کر رہی، آپ مجھ سے بھاگ رہی ہیں، کب تک بھاگیں گی؟ ایسا کر کے میری شدت کو مزید بڑھا رہی ہیں۔ میری دیوانگی سے آپ ڈر جائیں گی جانم، پر اب اور نہیں، یہ شدت تو آپ کو ہی سہنی ہے۔ کیا پناہ مانگیں گی؟ وہ سگریٹ اٹھائے بالکنی میں آ گیا کہ یہ طے تھا اسے نیند نہیں آنی۔ اگلے دن صبح صبح بادلوں کا راج تھا، موسم کافی پیارا ہوا تھا۔ معمول کے مطابق سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے۔ ہمایوں سلام کرتا اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ اس کے چہرے پر سخت تاثرات چھائے تھے۔ منت اس کے چہرے پر سختی دیکھ کر اور آنکھوں میں سرخی دیکھ کر پریشان سی ہو گئی اور ڈر کر چہرہ جھکا گئی۔ ہمایوں بنا دیکھے اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ بیٹا طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ رفت بیگم اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر بولی۔ جی ماں، لگتا ہے نیند پوری نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی آنکھیں صاف رت جگہ کی چگلی کھا رہی تھی۔ کسی سے کوئی کام کہا تھا اس نے نہیں کیا تو مجھے نیند نہیں آئی۔ وہ آنکھیں بھر کر منت کو دیکھ کر بولا اور اسے جتایا کہ وہ ساری رات اس کی حرکت کی وجہ سے سو نہیں سکا۔ اس کے یوں دیکھنے پر منت کے ہاتھ پیر پھولے۔ وہ ٹیبل سے اٹھ کر جانے لگی کہ کسی نے اس کا دوپٹہ پکڑا۔ منت نے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ماما! حورب منت کا دوپٹہ پکڑے ماما کہہ کر بلا رہی تھی۔ ہمایوں جوس کا گلاس لبوں سے لگا رہا تھا کہ چونک کر حورب کو دیکھا۔ سب خوشی سے حورب کو دیکھنے لگے۔ ماما کھانا؟ منت کو اپنی طرف دیکھتا پا کر حورب ناشتہ کی طرف اپنی چھوٹی سی انگلی کر کے بولی۔ ہمایوں سمیت سب منت کا ری ایکشن دیکھنا چاہتے تھے جب وہ جھکی اور حورب کے دونوں گالوں پر بوسہ دیا۔ ماما کی جان! اس وقت وہ سب بھلائے حورب کو سینے سے لگاتی بولی۔ حالانکہ وہ خود چھوٹی سی تھی پر حورب کو اسے یوں ماما کہنا منت کا دل لبھا گیا۔ بشریٰ بیگم اسے فون پر سمجھاتی رہتی تھی کہ حورب کو اب اپنی بیٹی مانے اور ماں جیسا پیار دے۔ منت نے ان دنوں حورب کو بہت پیار دیا تھا اور اس پیار کا نتیجہ تھا کہ وہ جو منت سے اشاروں سے بات کرتی تھی آج ماما کہہ رہی تھی۔ کیا کھانا؟ میرے
बेबी ने वो हुरब को प्यार करती अपनी गोद में उठाकर बोली। रिफत बेगम और नाजिश बेगम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। शहरियार साहब ने हुमायूं के कंधे पर थपकी दी। मन्नत ने सबको अपनी जानब तकता पाकर सर उठाकर देखा तो सब मुस्कुरा रहे थे। मेरी प्यारी बच्ची, आज तुमने हुरब को बेटी मानकर हमारा मान बढ़ा दिया है। रिफत बेगम उसके सर पर प्यार करती बोली और दोनों से पैसे वार कर मुलाजमा को दिए और सब नाश्ता करने लगे। मन्नत हमायूं की भारी आवाज़ गूंजी। आपका एडमिशन करवा दिया है, रोल नंबर स्लिप लेने जाना है, परसों पेपर है आपका, जल्दी से रेडी हो जाए। मन्नत के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और सर हिलाया। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, आ जाए। मन्नत हुरब को रिफत बेगम की गोद में बिठाकर ऊपर गई और चादर ओढ़े सबको खुदा हाफिज बोलती बाहर आ गई। हुमायूं ने उसे देखकर फ्रंट डोर खोला और घूमकर दूसरी साइड आते ड्राइविंग सीट पर बैठा और जन से गाड़ी गेट से बाहर निकाली। मन्नत का दिल डर रहा था। पर मौसम देखकर वो सब भुलाए विंडो से बाहर बादलों को देख रही थी। जैसे ही उनकी गाड़ी गेट से बाहर निकली, शेबी जो नजर रखे हुए था हुमायूं के साथ, मन्नत को देखकर हैरान हुआ। और तुम चिड़िया यहाँ पड़ी हो, पर तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है? शेबी उसे फ्रंट पर बैठे देखे बड़बड़ाया। कहीं तूने इससे शादी तो नहीं कर ली? अब आएगा मजा। तेरी तरफ तो अभी हिसाब निकलता है और मलक साहब को अब पता चलेगा पाशा से पंगा लेने का इंजाम क्या होता है। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। मन्नत का चोर नज़रों से उसे देखती, जो संजीदा गाड़ी चला रहा था, फिर बाहर देखने लग जाती। हुमायूं अनजान बना नज़रें सामने मरकूज किए हुए था। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक बंगले के सामने रुकी। गार्ड ने गाड़ी देखते ही गेट खोला। मन्नत ने उलझ कर हुमायूं को देखा। वो गाड़ी पोर्च में खड़ी करके उतर कर उसकी साइड आया और मन्नत को समझने का मौका दिए बगैर उसे अपनी बाहों में उठाया। मन्नत ने उसकी शर्ट को मुट्ठी में कैद किया। उसके चेहरे पर संजीदगी देखकर मन्नत का दिल अंदर से डर रहा था। वो उसे उठाए बंगले की बैक साइड पर बने पूल की जानब चल पड़ा। अचानक से बादल टूटकर बरसने लगे। नीचे उतारे मुझे प्लीज। हूँ। हुमायूं ने नफी में सर हिलाया। सजा के लिए तैयार हो जाए जानब। कैसी सजा? मन्नत की आवाज़ लड़खड़ाई। हुमायूं ने रुककर मन्नत को देखा, जो उसके गले में बाजू डाले गिरने के खौफ से उसके सीने से चिपकी थी। जानब, मेरी बात ना मानने की सजा। ये कहते ही हुमायूं ने मन्नत को स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया और अपनी शर्ट उतारकर दूर फेंकते खुद भी पूल में छलांग लगा दी। मुझे तैरना नहीं आता, बाहर निकाले मुझे। मन्नत पानी में हाथ पाँव मारती बोली। हुमायूं से थोड़ा फासले पर रुक गया। मैं डूब जाऊंगी। हुमायूं, मुझे बाहर निकाले। मन्नत पानी से सर ऊंचा करते बोली तो चेहरे पर बारिश पड़ने से वो आंखें बंद किए हुमायूं से बोली, मैं डूबने नहीं दूंगा। जानब, हुमायूं एक ही जस्त में मन्नत तक पहुंचा। पहले ही वो पानी में ऊपर से तेज बारिश होती बारिश वो डर कर हुमायूं के साथ चिपक गई। हुमायूं ने शर्ट लेस देखकर वो शर्म से पीछे हटी कि हुमायूं ने उसे अपने सीने में भींच लिया। हुमायूं के दिल ने एक बीट मिस की। बाहर निकाले प्लीज। वो उसके सीने में छुपी उसके गिर्द हसार बांधे बोली। बारिश तेज होती जा रही थी और हुमायूं के जज्बात में तूफान बर्पा हो रहा था। मन्नत का लम्स उसे पागल सा कर रहा था। हुमायूं एक हाथ से उसे खुद से लगाए और दूसरा उसके बालों के पीछे रखे, बालों को अपनी मुट्ठी में आहिस्ता लिए उसका सर ऊंचा किया और उसके लबों पर झुक गया। वो पहले ही उतने पानी से घबराई हुई थी। हुमायूं की शिद्दत पर तड़प उठी। मन्नत फड़फड़ा के रह गई। हुमायूं आहिस्ता आहिस्ता उसके होंठों को कैद में लिए झुकता चला गया कि दोनों मुकम्मल पानी में डूब गए। वो पानी में उसकी सांसों को पी रहा था। मन्नत ने उसके गिर्द हसार मजबूत किया कि उसकी हालत ख़राब होती जा रही थी। वो पानी में मुज़ाहमत करती भी ना कर पा रही थी। हुमायूं को आखिर इस पे तरस आया। उसके होंठों को आज़ादी बख्शी और उसको खींच कर बाहर निकाला।
मन्नत जो समझ रही थी कि अब बस मौत करीब है, एकदम से जिंदगी जैसे वापस मिल गई हो। वो गहरे सांस लेती उसके सीने पर सर टका गई। आप बहुत बुरे हैं, वो उसके चौड़े सीने पर मुक्के मारती बोली। और आप बहुत मीठी हैं जानम। हमायूं मुस्कुराकर कहता फिर से झुका और अपना वही अमल दोहराया। इस बार उसके अमल में पहले से ज्यादा शिद्दत थी। दोनों मुकम्मल पानी में थे और हमायूं उसको अपनी कैद में लिए गुजरी रात की सजा दे रहा था। मन्नत ने न जाकर उसके जज्बात और भड़का दिए थे और अब न जाने पर वो पछता रही थी। हमायूं कुछ देर बाद दिल पर जबर करके उससे दूर हुआ और उसको अपनी बाहों में उठाकर पानी से ऊंचा किया। मन्नत लाल चेहरा लिए उससे चिपक गई। इसमें बिल्कुल हिम्मत ना थी। जानम, यह है छोटी सी सजा, उम्मीद है अब आप ऐसा नहीं करेंगी। मन्नत ने फट से सर हिलाया और उसके सीने में चेहरा छुपा लिया। मुबादा फिर से वही अमल ना दोहराए। दोनों के दिल जोरों शोर से धड़क रहे थे। हमायूं उसके दिल की धक धक बखूबी सुन रहा था। वो मुस्कुराता हुआ बाहर निकला कि मजीद देर पानी में रहते तो उसकी जानब बीमार पड़ जाती। वो इसे लिए खूबसूरत से कमरे में आया और नीचे उतारा। उसके होंठ सुर्ख हो चुके थे और हल्के हल्के लर्ज रहे थे। मन्नत भीगी हुई सी जल्दी से उससे दूर हुई। हमायूं ने ड्रेस निकाल कर उसके सामने किया तो वो हैरान हुई। ये नूर का है। वो उसकी नज़रों में सवाल देखकर बोल पड़ा। मन्नत ने वो ड्रेस थामा और वैसे खड़ी उसे देखती रही। क्या हुआ जानम, चाहे चेंज कर लें, ठंड लग जाएगी। ये नूर का है, मैं कैसे ले सकती हूँ। वो उसको बिना शर्ट के उस अपने सामने खड़े देखकर मनमनाई। अभी और कोई ड्रेस नहीं है, नूर के ही हैं तो आप यही पहन ले। हम यहाँ क्यों हैं? उसने रेड कलर का सूट उसके हाथ से लेते पूछा। आपको सदा देने के लिए जाना, वो उसकी शहर पर उंगली फेरते बोला। कि मन्नत उछलकर दूर हुई और भाग कर वाशरूम में कैद हो गई। वो दरवाजे पर सर टकाए अपनी हालत को समझने की कोशिश कर रही थी। दिल की हालत अजीब थी। हमायूं का छूना उसे बुरा नहीं लग रहा था। दिल की धड़कन उसके करीब होने से बढ़ जाती थी। हमायूं ड्रेसिंग रूम में चेंज कर चुका था और बेड पर लेटा मन्नत का इंतजार कर रहा था जो आने का नाम नहीं ले रही थी। जानम, अगले 1 मिनट में अगर आप बाहर ना आई तो मैं खुद अंदर आ जाऊंगा और फिर आगे जो होगा आप जानती हैं। उसकी धमकी का असर हुआ था कि वो रेड कलर के सूट में दुपट्टा फैलाए बाहर निकली। गीले बाल, खूबसूरत सरापा। हमायूं फिर से बहकने लगा। वो उसकी नज़रों से कंफ्यूज होती दुपट्टे को कंधे पर सेट किए वहीं खड़ी थी। यहाँ आए जानम, मन्नत ने नफी की। बाहर बारिश जोर पकड़ चुकी थी। आ जाए जानम, अगर मैं उठा तो फिर आपको वो ही अच्छा नहीं लगेगा। वो छोटे छोटे कदम लेती बेड के किनारे पर टिक गई। हमायूं ने उसे अपनी तरफ खींचा और कि वो टूटी हुई डाल की तरह उस पर आ गिरी। हमायूं ने लंबा सांस लेकर उसके बालों की खुशबू को अपने अंदर उतार लिया और उसका सर अपने सीने पर रखा। वो जानती थी मज़ाहमत का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए चुपचाप पड़ी रही। हमायूं उसके पास आते ही सो गया कि सारी रात उस लम्स के लिए तरसा था और अब मन्नत का सर अपने सीने पर रखे सुकून मिलते ही सो गया। मन्नत उसकी भारी हुई सांसों की आवाज़ सुनती रही और उसकी सजा याद आते ही शर्म की मुस्कुराहट छा गई। इसके साथ ही गाइस आज की इस एपिसोड का इख्तिताम करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो जो कि आज की बहुत रोमांटिक वीडियो थी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक दफ़ा फिर से आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपके लिए ही वीडियो को तैयार करने में इतनी मेहनत करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।